My dear students, in this session we'll be taking up critical reasoning questions from SNAP previous years, and questions will be based on statement and assumption, statement and judgment, or statement and conclusion. First question is, the statement is saying, I think that she has gone mad. A is telling B about Madhu that I think that she has gone mad. Last night I saw her barking like a dog, which implies that A is telling B about Madhu. So this she is Madhu, and Madhu has gone mad because last night A saw her barking like a dog. First assumption is Madhu is a friend of A. So we know for sure that A knows Madhu somehow. But we are not sure whether it's a friend. Could be acquaintance. Could be an acquaintance. So not sure. So this assumption is definitely not implicit. The only implicit assumption is that A knows Madhu. Second assumption, B knows Madhu. Definitely B knows Madhu, because if B does not know Madhu, तो A B को फिर क्यों बताएगा या बताएगी कि वो पागल हो गई है. ठीक है, वो कौन? If B does not know, so definitely B knows Madhu. That is an implicit valid assumption. Third one, some people do not bark like dogs. So statement क्या कह रहा है? I think that she has gone mad. And why has she gone mad? Because last night I saw her barking like a dog. So barking like a dog is madness. पागलपन की निशानी है. So if this is madness, that means this is not ordinary. This is not normal. If this is not normal, then definitely there are some people who do not bark like dogs. Valid argument, valid assumption, implicit assumption. The second and third are implicit. Option B is the answer. Is it clear? Next question. Statement is saying the Prime Minister is expected to announce an expansion in his ministry shortly. A newspaper report is saying that. Newspaper report is saying that Prime Minister is expected to announce an expansion in the ministry. Assumption क्या है? First assumption, the newspaper has quoted authentic sources. The second assumption, the newspaper has reliable sources for the news. And the third one, the Prime Minister has the power to expand his cabinet. If Prime Minister is expected to announce an expansion in his ministry shortly, that implies the Prime Minister has the power to expand his cabinet. So definitely assumption number 3 is implicit. Next, क्योंकि न्यूज़पेपर ये रिपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर के पास में ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज होंगे. तो यस, ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेज होंगे न्यूज़पेपर के पास में. दैट इज फाइन. सो स्टेटमेंट 2, assumption 2 is also implicit. That newspaper has reliable sources for the news. Assumption 1 क्या कह रहा है? Assumption 1 कह रहा है newspaper has quoted authentic sources. तो authentic sources होंगे तो उसके पास, बट क्या कोट किया है या नहीं किया है? How can we know? So that is not a valid assumption कि whether the newspaper has quoted it or not. That we do not know, and that is not implicit. तो second और third हमारा implicit होगा. Option B आंसर हो जाएगा. Is it clear? ठीक है. Next statement. Next question is saying 6 statements are followed by options consisting of 3 statements put together in a specific order. We have to choose the option which indicates a valid argument. Either the third argument is a logical conclusion drawn from the earlier 2 arguments. ठीक है, तो 2 आर्ग्यूमेंट से अगर तीसरा आर्ग्यूमेंट हमारा लॉजिकल कंक्लूजन होता है, इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए इफ ए देन बी, या ए इज बी. सेकंड स्टेटमेंट कुड बी सेइंग बी देन सी, या बी इज सी, या इफ ए इफ बी देन सी. तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट ये बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट शुड बी सेइंग हेंस ए इज सी. ठीक है, हेंस ए इज सी. सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा लॉजिकली. देखते हैं ऑप्शंस में. तो पहला ऑप्शन है हमारा, और जो एफ ई डी जैसे पहले ऑप्शन में लिखा है, तो यही सीक्वेंस भी होगा, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. तो एफ ई डी, व्हाट एफ ई डी इज, एफ कह रहा है अमर इज नॉट अ मैजिशियन, अमर नॉट अ मैजिशियन. ई कह रहा है नो मैजिशियन इज हैप्पी, तो नो मैजिशियन इज हैप्पी. एंड डी इज सेइंग नो ऑनेस्ट मैन इज अ मैजिशियन. तो यहां पे आ रहा है अमर और नॉट अ मैजिशियन. सेकंड में आ रहा है नो मैजिशियन इज हैप्पी, और थर्ड में आ रहा है नो ऑनेस्ट मैन इज अ मैजिशियन. तो डेफिनेटली 2 से तीसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. ये ऑनेस्ट मैन कहां से आ गया? पहले तो कोई 2 स्टेटमेंट में है ही नहीं. तो ऑप्शन ए डेफिनेटली नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी कह रहा है बी एफ एंड ए. बी इज सेइंग अमर इज ऑनेस्ट, फाइन. देन एफ इज सेइंग अमर इज नॉट अ मैजिशियन, एंड हेंस ए इज सेइंग अमर इज अनहैप्पी.
So does that make sense? No, it does not make sense. Amar is unhappy. ठीक है, Amar is unhappy ये बिल्कुल भी कॉन्सिक्वेंट नहीं है यहाँ से, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है. सी कह रहा है ए ई देन एफ, यानी अमर इज अनहैप्पी, नॉट हैप्पी. ई इज सेइंग नो मैजिशियन इज हैप्पी, एंड देन एफ इज सेइंग अमर इज नॉट अ मैजिशियन. डज नॉट मेक सेंस. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए कह रहा है अमर इज अनहैप्पी, देन ई इज सेइंग नो मैजिशियन इज हैप्पी. नो मैजिशियन इज हैप्पी, अमर इज ऑल्सो नॉट हैप्पी. सो अगर ये कहता कि हेंस अमर इज अ मैजिशियन, तब भी ये गलत होता, पर नॉट अ मैजिशियन कहने का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो डेफिनेटली सी इज इनकरेक्ट. ठीक है, अगर ये कहता इन दोनों से कि हेंस अमर इज अ मैजिशियन, क्योंकि कोई मैजिशियन खुश नहीं होता, अमर भी खुश नहीं है, हेंस अमर एक जादूगर है, बट दैट इज ऑल्सो अ फैलेशियस आर्ग्यूमेंट, तब भी ये लॉजिकली गलत होता. ठीक है, अभी तो बिल्कुल भी गलत है. और ऑप्शन डी कह रहा है बी डी एन एफ, बी यानी अमर इज ऑनेस्ट, नो ऑनेस्ट मैन इज अ मैजिशियन, एंड हेंस अमर इज नॉट अ मैजिशियन. यस, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस. बी डी एन एफ, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस. और लास्ट ऑप्शन भी है. तो अमर इज ऑनेस्ट, अमर ऑनेस्ट है, कोई ऑनेस्ट मैन मैजिशियन नहीं होता है, तो अमर भी मैजिशियन नहीं होगा. दैट इज करेक्ट. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. We have to decide which of the given statements weakens or strengthens the information and decide the appropriate answer. Information given is, due to the increased cases of kidnapping in its vicinity, School M has made it compulsory for parents or guardians of the students to give a duly signed authority letter to the person picking up the student from the school. एक duly signed authority letter देना है parents को, guardians को, to the person picking up students from school. That is the information. First statement हमारा कह रहा है, most working parents rely on their domestic help for picking up their children from school, who can easily coerce into forging or misusing the authority letter for monetary plans. यानी कि जिसको ड्यूली साइंड अथॉरिटी लेटर ये देने वाले हैं पेरेंट्स, जिसके ऊपर ये रिलाई करने वाले हैं, दैट पर्सन, दैट डोमेस्टिक हेल्प कैन इजिली बी कोअर्स्ड इनटू फॉर्जिंग और मिसयूजिंग द अथॉरिटी लेटर. सो डेफिनेटली दिस इज वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द इंफॉर्मेशन, बिकॉज जस्टिफिकेशन ही डिफीट हो जा रहा है, पर्पज ही डिफीट हो जा रहा है कि आप ड्यूली साइंड अथॉरिटी लेटर इसलिए चाहते हो सो दैट आप स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी इंश्योर कर सको, बट जिस बंदे को, जिसको वो अथॉरिटी लेटर मिलने वाला है, वो अगर उसको मिसयूज कर सकता है तो पर्पस डिफीट हो जा रहा है. तो डेफिनेटली दिस इज वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, डेफिनेटली. Second statement, there is no photograph on the authority letter, making it difficult to identify the person who comes to pick up the child. So this could very much be possible. Duly signed authority letter दिया किसी को, गया लेने कोई और आया और किडनैप करके चला गया. So this is also weakening the argument, basically defeating the purpose of duly signed authority letter. ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे वीकेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Love observes that if flight 409 is cancelled, then the manager could not possibly arrive in time for the meeting. So he has observed that if flight 409 is cancelled, अगर ये कैंसिल हो जाता है तो manager will not arrive in time. Manager could not possibly arrive in time for the meeting. So if this is cancelled, manager will be late. If cancelled, ठीक है, basically possibly late. Flight was not cancelled. ठीक है, फ्लाइट वॉज नॉट कैंसल्ड. तो अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो लव ने कंक्लूड किया है दैट मैनेजर विल सर्टेनली बी ऑन टाइम. क्या ये कंक्लूजन सही है? देखो, अगर कैंसिल होता तो मैनेजर कुड नॉट पॉसिबली अराइव इन टाइम, तो तब ये कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक होता. अगर इफ फ्लाइट 409 इज कैंसल्ड, दैट डेफिनेटली प्रॉब्ली द मैनेजर विल नॉट अराइव इन टाइम. दैट वॉज कंसिस्टेंट. बट फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजर टाइम पर ही आएगा. Still manager can be late due to some other reason. So this argument, this logic is not consistent. Manager still can be late. Evelyn replies that even if Love's premises are true, this argument is fallacious. His argument is fallacious. Therefore, she adds the manager will not arrive on time at all. So Evelyn correctly identified that Love's premises are true, but his argument is not right. Argument is not logical. Argument is fallacious. So that part is fine. That is correct. ये तो सही है. But then she adds that manager will not arrive on time at all. तो देखो, आर्ग्यूमेंट गलत हो सकता है, बट ये कैसे श्योर हो गई एवलिन दैट मैनेजर विल नॉट अराइव ऑन टाइम एट ऑल? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए. तो यहां कोई लॉजिक तो नहीं है.
ठीक है, फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है, टाइम पे भी आ सकता है मैनेजर, नहीं भी आ सकता है, हाउ डज शी नो कि मैनेजर विल नॉट अराइव ऑन टाइम एट ऑल, तो इसका लॉजिक भी करेक्टली प्लेस्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट वी कैन प्रॉपर्ली से अबाउट द डिस्कशन। ऑप्शन ए, एवलिन इज मिस्टेकन इन थिंकिंग लव्स आर्गुमेंट टू बी fallacious, नो शी इज नॉट मिस्टेकन, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, एवलिन इज राइट अबाउट लव्स आर्गुमेंट बट नेवरदलेस हर ओन कंक्लूजन इज वारंटेड अनवारंटेड, सो यस दैट इज राइट। सी कह रहा है सिंस एवलिन इज राइट अबाउट लव्स आर्गुमेंट हर ओन कंक्लूजन इज वेल सपोर्टेड, नो इट इज नॉट वेल सपोर्टेड। ऑप्शन डी, एवलिन इज मिस्टेकन अबाउट लव्स आर्गुमेंट, शी इज नॉट मिस्टेकन, but B is correct. Evelyn is right about Low's argument, but nevertheless her own conclusion is unwarranted. Is that clear? Next question. Cars are safer than planes. 50% of plane accidents result in death, while only 1% of car accidents result in death. Okay. Which of the following, if true, would most seriously weaken the argument above? Which implies that there might be more than one statements which are weakening the argument above. But we have to identify that statement which most seriously weakens the argument. पहला स्टेटमेंट कह रहा है planes are inspected more often than cars. Fine. More inspected more often. Option B कह रहा है the number of car accidents is several 100,000 times higher than the number of plane accidents. Option B का मतलब क्या हुआ कि cars में 50% प्लेन एक्सीडेंट जो होते हैं वो डेथ में उनकी वजह से डेथ हो जाती है, तो परसेंटेज में कंपैरिजन कर रहा है। और कार के बारे में बात करें तो कार में 1% में ऐसा होता है, बट अगर कार के एक्सीडेंट 100,000 सेवरल 100,000 टाइम्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेथ्स इन कार्स ड्यू टू कार्स विल बी ग्रेटर देन डेथ्स ड्यू टू प्लेन एक्सीडेंट्स। तो दिस स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज डेफिनेटली वीकनिंग द आर्गुमेंट। पूरा लॉजिक ही इसका फेल कर दे रहा है, इजंट इट सो? ऑप्शन सी कह रहा है पायलट्स नेवर फ्लाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल व्हाइल कार ड्राइवर्स ऑफन डू, and option D is saying plane accidents are usually the fault of air traffic controllers but not pilots. Option D का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज किसी का भी फॉल्ट हो, as long as accident is happening, what's the point? But in any case option B is the answer because this is the particular option which is weakening the argument. Rather पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को ही पलट दे रहा है कि जो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा था हमारा स्टेटमेंट उसका उल्टा सिनारियो है, बिकॉज सेवरल 100,000 टाइम्स हायर है नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेथ्स 1% होने के बाद भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू अमेंडमेंट ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया refers to bring an overall positive impact on the communities, cultures, societies and environments. The fundamental of CSR rests on the fact that not only public policy but even corporates should be responsible enough to address social issues. That is right. So that is the policy. Argument 1 कह रहा है हमारा government should not enforce companies to take up CSR. CSR is a desirable decision. The government should enforce it. Should not is not right. Argument 1 is not correct. Because अगर government ऐसा नहीं करेगी तो corporates खुद से CSR को हो सकता है ना लें, ना इम्प्लीमेंट करें, तो गवर्नमेंट को अपने साइड से इन्फोर्स करने का डेफिनेटली एफर्ट करना चाहिए. तो आर्गुमेंट 1 इज रॉन्ग. आर्गुमेंट 2 कह रहे हैं कंपनीज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप CSR फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. दैट इज ऑल्सो राइट. It is company's moral responsibility that it should take up CSR for a long-term vision, for a long-term benefit. That is also fine. Argument 2 correct है, 1 is not correct. हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन B. Next question. LPG subsidy is a stand taken by the government. Linking of Aadhaar card to a bank account has been mandatory for receiving the subsidy. LPG subsidy एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके थ्रू वो LPG में लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वो अवेल कर सके उन फैसिलिटीज को जो पहले नहीं कर पा रहे थे. आर्गुमेंट 1 इज ऑल द पीपल शुड गिव अप एलपीजी सब्सिडीज. डज नॉट मेक सेंस. पहली चीज तो है एक्सट्रीम ऑप्शन है, ऑल पीपल शुड गिव अप. दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट एलपीजी सब्सिडी चाहती है कि लोग अवेल करें. सो अगर सारे के सारे लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ देंगे तो अवेल कौन करेगा? कोई भी नहीं. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस. आर्गुमेंट 2 इज टू फिल द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच. सो यस, एलपीजी सब्सिडी से बहुत सारे पुअर को हेल्प होगा. इट विल बी मेड मोर अफोर्डेबल फॉर द पुअर. So definitely the gap is getting filled slightly. So argument 2 is correct. Option क्या है? Argument 2 is the output of argument 1. It is not. Option B. Argument 1 is a byproduct of argument 1. No, it is not. Argument 1 and 2 are complementing each other. No, they are not complementing each other. Because सारे लोग अगर LPG सब्सिडी छोड़ देंगे तो गैप कैसे फिलअप होगा? D. No logical link. Yes, that is the correct answer. Option D is the answer. Next statement. Should young entrepreneurs be encouraged? Argument 1, yes, they will help in the industrial development of the country. तो अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स
को इनकरेज किया जाएगा, दे विल हैव देयर ओन विजन, दे विल डेफिनेटली हेल्प द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाई ओपनिंग न्यू कंपनीज एटसेट्रा. तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट 1 हमारा करेक्ट है, सही है. आर्ग्यूमेंट 2 कह रहा है यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट. सो अगर हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ सीकिंग जॉब्स दे विल बी क्रिएटिंग जॉब्स. और जब वो नई जॉब्स को क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से ऑलरेडी जो बर्डन है एम्प्लॉयमेंट मार्केट पे वो कम होगा. सो यस दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज द आंसर. बोथ आर स्ट्रॉन्ग arguments, both are correct. Next, from the next academic year, students will have the option of dropping mathematics and science for their school leaving certificate examination. First conclusion is students who are weak in science and mathematics will be benefit. So next academic year se students will have the option of dropping mathematics and science. So it will help whom? Those who are already weak in science and mathematics, because अभी उनको प्रॉब्लम हो रहा था, बट अगले बार से जब ड्रॉप करने का ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा. First conclusion is fine. Second कह रहा है earlier students did not have the choice of continuing their education without taking these subjects. तो स्टेटमेंट हमारा साफ साफ कह रहा है from the next academic year the students will have the option of dropping these subjects. तो अगर नेक्स्ट academic year से ये ऑप्शन होगा यानी कि पहले ऑप्शन नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो वैलिड कंक्लूजन. बोथ आर वैलिड. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of all the television sets manufactured in India, the Solar brand has the largest sale. First conclusion is the volume of sales of all the brands of television sets manufactured in India is known. Definitely, अगर हम जानते हैं कि one brand Solar has the largest sale, तो largest कैसे पता चलेगा? Largest can only be known when we know the other values. When we know the other values, so definitely हमको बाकी sales की values पता होंगी. First statement is correct. Second कह रहा है production of no other television set in India is as large as that of Solar. हमारा स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन. बोथ आर डिफरेंट. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सोलार कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन है सोलार कंपनी का 100 टीवी सेट्स का और सेल्स है 90 का. और एक और कंपनी है कंपनी ए जिसका प्रोडक्शन है 200 टीवी सेट्स का और सेल्स है 50 का. तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ ना ए का, बट सेल्स कम है. तो सेल्स तब भी कम हो सकता है जब प्रोडक्शन ज्यादा हो. तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट. ओनली वन फॉलोज. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट डी was recently criticized for accepting a proposal as per which schools in the state will not conduct exams up to standard 9. Standard 9 तक एग्जाम ही बंद कर दिए schools में. Rather, schools will promote all the students up to standard 9 and from standard 9 onwards students will either be passed or failed depending upon their marks in the exams. तो standard 9 के बाद में एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होगा. Which of the following may not be a reason for criticism of the government of state for accepting the proposal. तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो कि रीजन नहीं होगा क्रिटिसिज्म का. यानी कि देयर विल बी 3 रीजंस ऑफ क्रिटिसिज्म और एक होगा जो कि नहीं होगा. तो वन माइट बी अ जस्टिफिकेशन, या फिर जस्टिफिकेशन ना भी हो पर रीजन ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं होगा. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है, सेवरल पेरेंट्स हैव रेज्ड कंसर्न that students would not be willing to pay attention in class and retain the information because they do not have to write exams. वैलिड क्रिटिसिज्म है कि अगर उनको एग्जाम लिखना ही नहीं है तो क्यों अटेंशन पे करेंगे क्लास में, क्यों इन्फॉर्मेशन रिटेन करेंगे. डेफिनेटली एक वैलिड क्रिटिसिज्म है और इसलिए आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी, students learn to write exam papers in a stipulated period of time with the practice of solving exam papers over the years and many students may not be able to grasp it directly in the standard 9. That is also a valid criticism and hence will not be the answer. बिकॉज डायरेक्टली आप उनको सीधे क्लास 9 में कहोगे एग्जाम दो, उससे पहले उनको कोई एग्जाम का प्रैक्टिस ही नहीं है तो प्रॉब्लम होगा उनको. ऑप्शन सी, मेनी टीचर्स ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड आर मेनली फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग मार्क्स रादर देन गेनिंग नॉलेज. तो हो क्या रहा है कि एग्जाम होते हैं तो बच्चों का सिर्फ यही फोकस है कि एग्जाम में मार्क्स लो, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है. ठीक है, उस पर फोकस मत करो, मार्क्स पे फोकस करो. तो दैट इज अ जस्टिफिकेशन फॉर द पॉलिसी दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग कि स्टैंडर्ड 9 तक कोई एग्जाम का चक्कर मत रखो, बच्चे नॉलेज पे फोकस करें, उसकी कोशिश करो. तो सी इज अ जस्टिफिकेशन, इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म. तो प्रॉब्ली सी इज द आंसर. ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं. ऑप्शन डी कह रहा है, स्टडीज सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स बिकम लेस प्रोन टू एग्जाम एंजाइटी
and exam fear when they get used to passing exams over the years as compared to when they do not appear for exam at all. Again, this is a criticism कि एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम फियर उनका तब जाता है जब वो बार बार एग्जाम देते हैं, और अगर आपने एग्जाम ही हटा दिया तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो कैसे जाएगा एग्जाम फियर? तो डी इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म, सो नॉट द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. आई बिलीव आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट अबाउट दैट. और अगर सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.